नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जम्मू विजयपुर में जो स्थित है और SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन होता है। उस कोलैबोरेशन के चलते इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये बस उनको डोनेट की जाती है। इस मौके पे PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद थे। क्या कुछ पूरा प्रोग्राम रहा ये देखिए। A very good afternoon to all the Technology, Minister of State of the Ministry of Earth Sciences, Minister of State in Prime Minister's Office, Minister of State in the Ministry of Personal Public Grievances and Pensions, Minister of State in the Department of Atomic Energy, and Minister of State in the Department of Space. So we welcome you to the AIIMS Jammu. Now I would like to welcome e-corner which will house ATM and various other machines which will make the banking and financial services very easy for the faculty, staff members and others in the campus has also been agreed to by Dr. Shakti Gupta. I am thankful to Dr. Shakti Gupta as well as to Dr. Jitin Singh for all the patronage and the support provided to State Bank of India. This is again a humble beginning which we will be taking forward. From the judiciary. So you can see that how much active yesterday he was in Telangana and then Rajasthan and so many other places. But in spite of that, he was so committed to Jammu and to the public of Jammu and Kashmir that he spared time for this very important occasion. And this actually bus is one of the two buses which we are expecting from State Bank of India. And this is the first bus which has come. This will be utilized for our outreach services. Our doctors, nurses, our technicians, students, they go to the periphery and will try to reach to the remotest possible area of that area. So that will help us actually. So once again, thank you so much. It's a very lucrative health startup sector for all of you. I mean, we did in 60 villages in the remotest area of Doda called Gundo. It cost about 70-60 lakh. Though we didn't make the patients pay because it's a matter of procedures, we raised the funds. The second phase we had in the border areas. In border areas, the telemedicine is slightly difficult because they don't have the net facility. But ISRO, which also happens to be associated with me for the sharing information with all of you, provides a special provision for telemedicine if you have to do it in the protected areas. So we did that. And now we are into the upper reaches of Basoli and Bilawara. So I think now next stage will be adding value to this. I'm sure with the kind of liberal approach and liberal cooperation that Mr. Jaswal is offering will not be difficult. At least other thing can also be done, that you can also move your ambulance. Nowadays actually the concept of ambulance is virtually clear. You don't have transportation, you treat them then and there. And then so the same van can move around in the peripheral areas and they can at least get connected to the doctors within the aims. So that your doctors are able to provide consultation across through this. So I'm glad that you are part of this one of the newborn aims of India, and you have taken charge right from the beginning. Thank you very much. सर इसे इधर कैसे टच कर लीजिए सर, काशी पहले 1 मिनट रखिएगा अच्छे से 1 मिनट जी सर। Thank you so much, sir. Congratulations, SBI. Congratulations, AIIMS Jammu, for this collaboration. एक ही साथ चले थे। चंद्रयान
3 की ये विशेषता जो आपने रिपोर्ट भी किया कि पहला ऐसा जो सदर्न पोल पे जाकर के उतरा है, जो वर्जिन एरिया है, उससे हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो रही हैं वहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में, वहाँ पे मिनरल्स के बारे में, वहाँ पे थर्मल सिचुएशंस के बारे में। वो भी साझा नहीं की, हम उसका विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि सारी दुनिया, अमेरिका और रूस जैसे देश जिन्होंने अपनी अंतरिक्ष यात्रा हमसे बहुत साल पहले प्रारंभ की थी, वो बड़ी उत्सुकता से, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमारी जानकारियां शेयर करें। क्योंकि भले ही अमेरिका ने मानव को सबसे पहले उतारा था चांद की धरती पर सन 2069 में, लेकिन ये हमारा चंद्रयान था जो वहां से पानी के होने के प्रमाण लेकर के आया, H2O मॉलिक्यूल। उसका महत्व ये है, जो कि वैज्ञानिक लोग समझते हैं, कि पानी के अस्तित्व का अर्थ ये होता है कि कहीं ना कहीं जीवन की भी संभावना हो सकती है। वो तो आगे जाकर के विश्लेषण और शोध का एक विषय रहेगा। लेकिन जो हमारे पूर्वज, हमारी दादी माँ हमें कहानियां सुनाया करते थे कि चांद में किस तरह के लोग होंगे, होते होंगे कि नहीं होते होंगे, परियां नाचती होंगी, उन सभी सवालों का वैज्ञानिक उत्तर ढूंढने की प्रेरणा यदि दुनिया को दी है तो भारत के चंद्रयान ने दी। और इसलिए आज भारत प्रथम श्रेणी का है। और इसी तरह से आदित्य मिशन, उससे प्रारंभिक फिल्में आनी शुरू होंगी। जनवरी के मास में वो अपनी पूरी कामकाज प्रारंभ कर देगा। इसमें महत्वपूर्ण बात जो मीडिया के साथ साझा ये करनी है कि चंद्रयान मिशन जब लॉन्च हुआ तो 1000 मीडिया हमारे मित्र वहां मौजूद थे उसको देखने के लिए, उस लॉन्चिंग साइट पे श्रीहरिकोटा। और जब आदित्य की लॉन्चिंग हुई तो लगभग 10,000 वहां पर श्रोता उसको देख रहे थे। और ये इसलिए महत्वपूर्ण बात है कि ये मोदी जी के कारण हुआ। ये वही श्रीहरिकोटा, वही इसरो जो पहले बाहर के लोगों के लिए पाबंद था, उसके फाटक के अंदर किसी को झांकने की इजाजत नहीं थी। जब मुझे किसी मीडिया वाले ने वहां पूछा, जैसे चंद्रयान की लॉन्चिंग हुई, कि किसी आलोचक ने कहा कि इसमें नया क्या है जो इतना जश्न मनाया जा रहा, तो मैंने उनसे पूछा कि आप पिछली बार कब आए थे? मैं पहली बार आया। मैं कि यही नया। मोदी जी ने इसको खोल दिया पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए। और आने वाले समय में हमारा जितना भी विकास होगा वो सामूहिक प्रयास से होगा। प्राइवेट और पब्लिक की ये लकीरें जाती रहेंगी और ये सामूहिक सिनर्जाइज प्रयास का नतीजा है। आज हमारे पास 3-4 साल के भीतर ही 150 से अधिक स्पेस में स्टार्टअप्स हैं। उनमें से जो पहले आरंभिक दिनों के थे, स्काई रूट्स इत्यादि, वो अब एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। एक नया सेक्टर, हमारे इतने योग्य नौजवान विदेशों में चले जाते थे क्योंकि स्पेस में एक्सपर्टाइज हासिल करने के बाद, स्पेशलाइजेशन करने के बाद यहाँ पर उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था। तो मोदी जी ने, जिसे मीडिया ने कहा अनलॉकिंग ऑफ द स्पेस सेक्टर, हमारे पास सब कुछ था, हमारे पास प्रतिभा थी, हमारे पास योग्यता थी, हमारे मेहनत करने का मादा था, आंखों में सपने थे, दिल में अरमान थे, लेकिन हमारे पास वो साधन नहीं थे जो नीति निर्धारकों ने देने थे। तो मोदी जी ने वो इनेबलिंग मिलियो दिया। अगर आप देखेंगे, सारा भाई ने जब ये कार्यक्रम शुरू किया था तो अपने साइकिल के कैरिज पर सवाल ले जाते थे। आज वही नासा जो अमेरिका का संस्थान है हमसे सहयोग मांग रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये आदित्य है या चंद्रयान है, ये भारत की तेज प्रगति का एक प्रतीक बन करके दुनिया के सामने आएगी। ये जो बस है अभी डोनेट की गई है एम्स के लिए, और कितनी फैसिलिटी और सुविधा रहेगी एम्स को इस बसेस से, वो आने वाला वक्त रहेगा। बहरहाल आप इस कोलैबोरेशन को कैसे देखते हैं, अपनी वैल्यू राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। देखते रहिए ग्रेट जम्मू। कैमरा सिंह के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।